If your drafting is not powerful, then there is a chance to lose that case. Drafting should be powerful. Winning an appeal in the Supreme Court requires meticulous preparation, but state में ऐसा ही इसका stage है. IBC Code Matters, Understanding Statutory Appeals in Supreme Court of India, a strategy to succeed and landmark judgments. Today we have a guest, Advocate Jaiprakash Somani, Supreme Court of India. Over to you, sir, regarding this particular topic. Yes. तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 का जो ये लॉ है, that is code, Insolvency and Bankruptcy Code, it is very powerful code. As a insolvency professional also, I'm myself is insolvency professional also with the advocate in Supreme Court. So this creates a miracle in insolvency regimes. तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको. The Insolvency and Bankruptcy Code enacted in 2016 revolutionized the insolvency resolution landscape in India. It aims, इसका उद्देश्य क्या है? To address the mounting NPAs, that is non-performing assets, promote entrepreneurial activities, and maximize creditor value. Given its significance, stakeholders, whether corporate debtors, lenders, or resolution professionals, often find themselves entangled in legal dispute, many of which reach the Supreme Court of India. So ये थोड़ा सा ये है, और इसमें जो मैटर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के, वो जनरली NCLT में पहले जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बाद एज पर सेक्शन 61 अपील आता है NCLAT में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, दैट इज कॉल्ड NCLAT, या NCALT भी बोल सकते हैं. तो वहाँ पे आता है, और उसके बाद सेक्शन 62 है, 62 के अनुसार वो सुप्रीम कोर्ट में उसका आता है 45 डेज में. तो NCLT से 30 डेज में और NCLAT से 45 डेज में सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए. एंड 15 डेज इज देयर पीरियड ऑल्सो कंडोनेशन डिले करने का, बट नॉट मोर देन 15 डेज. सो दिस इज देयर, बट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एवरीथिंग इज देयर, एंड देयर इज अ डिस्क्रिशन इन सुप्रीम कोर्ट to accept this case or whether to reject that case. They have the discretion. So if comes in the form of SLP, then party can get the 90 days also, okay, limitation period in the. So SLP can also file in the insolvency matters in Supreme Court, and statutory appeal also can file under section 62 of the IBC code, like that. So basically this particular act protects the creditors, right? Yes. Yeah. They protect all the significant, mainly stakeholders. So stakeholder is the main stakeholder is creditor, then secured creditor, then other operational creditors, then in home buyer cases, home buyers are also one of the creditors. Operational creditors. No, they are financial creditors. Home buyer are in financial creditors. So then government dues are also there, then labor or employees payment is there. So that is a waterfall mechanism जो है ना, हेयर कट का waterfall mechanism जो इसमें दिया है IBC में, तो उस अनुसार वो सब स्टेक होल्डर रहता है. So all the stakeholders are taking care properly. Resolution profession को जो IP रहता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसको सब स्टेक होल्डर का ख्याल रखना पड़ता है ये करते समय. जो 180 डेज में उसको CIRP प्रोसेस करना है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो 180 डेज में तो उसको सब एक करना है. उसके ऊपर हम एक अलग प्रोग्राम कभी वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर. आज हमारा हाउ टू गेट दिस मैटर सक्सेस ऑफ दिस मैटर इन सुप्रीम कोर्ट ये विषय है, इसलिए हम ये विषय को स्टिक करेंगे आज. So how to win the statutory appeals of the IBC to the Supreme Court? Yes. The preliminary
अपील अथॉरिटी इज इंसॉल्वेंसी मैटर इज द एनक्लैट, तो एनक्लैट के बाद इधर आता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस और सब्सटेंशियल क्वेश्चंस। सो लीगल इम्प्रीजमेंट किधर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रीजमेंट होता है, फंडामेंटल राइट इम्प्रीज होता है, ऐसा लिंक अगर लॉ कैसा गलत है ये बता सकते हैं, या कैसा ये प्रोविजन अगेंस्ट हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ लिंक लगा सकते हैं, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तैयार होते हैं और जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के तैयार होते हैं। दैट टाइम इट इज़ वेरी इजी टू एडमिट दैट केस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, 90% सक्सेस यहाँ ही मिल जाता है। फिर आफ्टर नोटिस मैटर में जो रहता है वो टेक्निकल पार्ट रहता है। देन प्रोसीजर जो इसका है ना सुप्रीम कोर्ट में, उस प्रोसीजर थोड़ा बताता हूँ। तो इसमें एसएलपी या स्टैट्यूटरी अपील जो भी फाइल करते हैं तो उसको पहले प्रॉपरली वी शुड रीड द इम्प्यून ऑर्डर। इम्प्यून ऑर्डर मीन्स द ऑर्डर विच वी आर चैलेंजिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऑर्डर हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वो इम्प्यून ऑर्डर है। कोई एनक्लैट का ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं दैट इम्प्यून ऑर्डर। इम्प्यून ऑर्डर पढ़ लेना और इम्प्यून ऑर्डर पढ़ के एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर जस्टिस नहीं मिला है हमारे पार्टी को, वो थोड़ा ढूंढना और उसके सॉल्यूशन प्रॉपर अगर एसएलपी में हम लिखते हैं प्रॉपरली तो देन उसका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होता है। इसलिए थोड़ा सा टीम को फोकस करना पड़ता है इसके ऊपर। एंड विथ प्रॉपर प्रेसिडेंट्स, जो पास्ट लीडिंग केसेस है वो भी प्रॉपरली उसमें दे देते हैं ना, तो एक एक्सेलेंट ड्राफ्टिंग होता है। और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मनोज कुमार चौधरी हु इज़ टेकिंग माई पॉडकास्ट टुडे इज़ माई वन ऑफ द एसोसिएट इन सुप्रीम कोर्ट। एक कॉर्पोरेट मैटर में बहुत इंटरेस्ट लेता है, पेटेंट मैटर में भी लेता है और बहुत अच्छा है करता है, और पेटेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको मेरे टाइम क्लाइंट को लेके देना, क्लाइंट के साथ बात करना, बहुत ऐसा रिगरस काम करता है, यानी कि बहुत अच्छे तरह से काम करता है। तो इसके लिए हमारे टीम में ऐसे हीरे हैं मनोज जैसे, इसके कारण बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमारे आ रहे हैं। और इंसॉल्वेंसी मैटर का जहाँ तक बात है वहाँ तक ड्राफ्टिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for any success in Supreme Court, because many times presiding judge and the other bench judge both are reading that particular cases before coming and sitting on the bench, and so they knows what the pros and cons of their particular case. So if your drafting is not powerful, then there is a chance to lose that case. Drafting should be powerful, number one. Second, number two, your argument skill should be perfect. So argument skill should not be aggressive, you should be convincing. Convincing style. Don't increase your voice while speaking with the court, specifically in High Court and Supreme Court. Don't increase your voice, and in polite gesture, if you are stuck with your proper legal position, proper precedent connections and proper the fact of the case, you should know well, you should be well versed with the facts of the case. ये अगर प्रॉपर आपका है तो फिर आपका ड्राफ्टिंग अच्छा होता है, ड्राफ्टिंग अच्छा होने के बाद आपका प्लीडिंग अच्छा होता है, प्लीडिंग अच्छा होने के बाद आपका आर्गूमेंट अच्छा होता है एडमिशन हेयरिंग का। और एडमिशन हेयरिंग में मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है मनोज, मेनी टाइम्स वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि हम खड़े रहते हैं और हम कुछ बोलने के पहले ही जज बोलते हैं कि इशू नोटिस रिटेनेबल विद इन 4 वीक्स, यानी कि एडमिट हो जाता है मैटर, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग पे ही हुआ है। लेकिन कभी कभी खाली ड्राफ्टिंग में नहीं होता है तो हमको तो बात करके फिर एडमिट करवाना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ा सा दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेशन अगर आपके लॉयर में है तो ज़रूरत आपको सक्सेस मिलेगा। तो विनिंग, तो थोड़े से पॉइंट वाइज मैं बताता हूँ आपको। विनिंग एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट requires meticulous preparation, clarity of argument, and a strategic understanding of legal principle. Here are key strategies. मैं कुछ पाँच आपको कीज देता हूँ। First, focus on substantive question of laws. Frame the appeal arose questions that had broad legal significance, not merely factual disagreements. Demonstrate how the issue impact the
functioning of the IBC and the justice system at large. ये अगर फोकस कर पाते हैं तो then substantial question of laws you can frame. Second, leverage landmark judgment. Cite pertinent precedent that support legal reasoning. Show how your case aligns or diverges from established jurisprudence, emphasizing the need for the clarification or correction. Next, articulate constitutional principles. Argue if the decision involves constitutional provisions such as the right of fair hearing, Article 14, 19, 21, or question the constitutional validity of contains IBC provisions. Prepare a clear and concise SLP. Then demonstrate public policy implications. Then engage expert opinion and amicus curiae. So these are the important stages. So we should take care and we should have full devotion towards our case. That time it is possible to win the case in Supreme Court. तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो IBC कोड है ये कॉर्पोरेट के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए भी? एक्चुअली कोड इज फॉर ऑल. कोड में कॉर्पोरेट का सेक्शन अलग है, पार्टनरशिप के लिए सेक्शन अलग है, इंडिविजुअल के लिए सेक्शन अलग है. लेकिन अभी कॉर्पोरेट का जो है वो कोड नोटिफाई हुआ है. अभी पार्टनरशिप का और इंडिविजुअल का एट दिस स्टेज नोटिफाई नहीं है. जब वो नोटिफाई हो जाएगा दैट वो भी हो जाएगा. और उसके केसेस जो है अभी कॉर्पोरेट के केसेस NCLT में चलते हैं, और जब पार्टनरशिप का और इसका इंडिविजुअल का जब नोटिफाई हो जाएगा तो उसके केसेस DRT में चलेंगे, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल. जैसा NCLT टू NCALT देन सुप्रीम कोर्ट, वैसा DRT टू DRAT एंड आफ्टर DRAT टू सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसा है. और हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन रिट पिटिशन के अंडर है. रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 दे हैव द जुरिडिक्शन, बट स्टेट में ऐसा ही इसका स्टेज है. Can you quote some landmark judgments related to IBC? Yes, definitely. I'm expecting that question from you. I'm elaborating some judgments, landmark judgment, and these all are judgments in my book also, Insolvency Bankruptcy Code. There are more than my 65 plus books on Supreme Court case laws. So on Amazon, Flipkart, just put Supreme Court Jayaprakash Somani books. So you will get the books, and you can see very small books. So you will get 21 cases of sometime 35 cases, leading cases. So it is very easy to understand also practical application of any law. And for argument also that cases are very important. Many high court judges, many high court lawyers, Supreme Court lawyer are using that books for their interpretation, for their argument, for their drafting like that. So from that book also I have taken this some cases. So first is Innovatives Industries Limited versus ICICI Bank and another 2018 का केस है. इसमें जो की इश्यूज है, वेदर एन एसेट सेल ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी अमाउंट्स टू अ चेंज इन कंट्रोल एंड इफ इट अफेक्ट्स द रिजोल्यूशन प्रोसेस. जजमेंट, इसका जजमेंट जो हुआ है, अपहेल्ड दैट द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर द IBC इज बाइंडिंग एंड कैनॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर वैल्यूएशन और कंट्रोल चेंज. दूसरा जो केस है एक्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता एंड अदर्स 2019 का केस है. इसमें की इशू है द प्राइमेसी ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड COC. डिसीजन इज इम्प्रूविंग रिजोल्यूशन प्लान. जजमेंट इसका आया है, द कोर्ट रीअफर्म दैट COC's अप्रूवल इज फाइनल एंड बाइंडिंग and the NCLT or NCALT should not interfere unless procedure irregularities are evident. जब तक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं होती है तब तक COC का डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा कोर्ट ये जजमेंट में बोलता है. देन एडलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस
कनक कदारिया एंड अदर्स 2019 का केस है। इसमें इशू है वेदर द लैक ऑफ अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ क्लेम इनवैलिडेट्स द क्रेडिटर्स वोटिंग राइट। इसका जजमेंट जो आया वो ये है, द कोर्ट हेल्ड दैट वोटिंग राइट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन अ प्रोवन क्लेम एट द टाइम, emphasizing the importance of substantive rights over the procedural formality। और दो केस और एक केस देना चाहता हूँ मैं आपको, बानको नेशनल डे मार्टिनिया वर्सेस नकोचोट इक्विटीज लिमिटेड 2020 का लेटेस्ट केस है। इशू इसमें है वेदर फॉरेन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कैन ओवरराइड इंडियन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। इसका जजमेंट ये है, द कोर्ट क्लैरिफाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ द इंडियन आईबीसी इन केसेस इन्वॉल्विंग इंडियन एसेट्स एंड स्टेक होल्डर्स। So these are the some landmark cases in this So this is a very new code, I think 2016 only it has become applicable. Yes, this is a now child only. Yeah. So any amendment is going on in this or? Yes, regularly it is amending. There are so many amendments. Recently the Supreme Court recent trend and critical observations I want to give. The Supreme Court emphasized upholding the sanctity of resolution process and defense of COC decisions. Okay, and it remains cautious about the judicial overreach and balancing creditor rights with the procedural fairness. Okay, and so these are the cases, and with the grace of Lord Krishna, I clear that this examination of insolvency professional by giving 8 attempts fell, and in 9th attempts I clear that this examination। तो इसका अर्थ दो निकाल सकते हैं, एक तो सोमानी सर बेकार का आदमी है, उसको बुद्धि नहीं है इसलिए इतना बार फेल हुआ और फिर वो पास हुआ, ऐसा भी निकाल सकते हैं। और एग्जाम इज टफेस्ट टाइम। हाँ, और ऐसा भी निकाल सकते हैं कि सोमानी सर ने 8 बार रिवीजन किया है ये सब लॉ का, बराबर है, तो कितना एक्सपर्टाइज उसका आया होगा, ऐसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये एग्जामिनेशन इतना वास्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत कम समय रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहता है। और हर बार फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना इसको, तो 60 मार्क को पासिंग था, 60 को पासिंग था, तो मुझे 58.5 मिले फर्स्ट अटैम्प्ट में। फर्स्ट अटैम्प्ट में 58 पॉइंट। अगर मैंने निगेटिव कुछ भी टिक नहीं किया होता ना, जिसको क्या बोलते हैं तुक्का लगाना, तुक्का अगर मैं नहीं लगाता ना तो शायद भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता, लेकिन मैंने तुक्का लगाया तो तुक्का में नेगेटिव मार्किंग में कम होके मेरे 58.8 आए। फिर सेकंड अटैम्प्ट में जब गया तो वो जितने बार आप वो एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वो बार वो डिफ़िकल्ट लेवल हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो गया वो, तो फिर मुझे 56.5 कुछ तो भी आए। फिर मैं बोला यार ये दिल्ली सेंटर बेकार है, हम थोड़ा सा पंजाब का सेंटर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जगह बदलती था। कॉपी भी तो कोई कारण ही नहीं, वहाँ पे हो ही नहीं सकता, कॉपी भी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि 3 अलग बैठते आजू बाजू में ना, तो हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग होता है और कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए आप जेब से कुछ निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं निकाल सकते, टाइम फ्रेम बहुत ये है। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे 59 मार्क आए, 59 मार्क आए, तो फिर मैं परेशान हो गया। तो ऐसे करते करते मेरे 8 अटैम्प्ट खत्म हुए हैं और 90वें अटैम्प्ट में मैंने तुक्का नहीं लगाया एक भी और फुल तैयारी से गया, तो डायरेक्ट 64 मार्क्स आके मैं एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आई हैव वर्क एज ए IRP, इंटीरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशन। I have worked as a IP, RP also, resolution professional. I have the experience of working as a liquidator also. ये सब में एक्सपीरियंस है, चल रहा है मेरा काम, IPA है, सब है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट का तो मेरा फुल फोकस है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इसलिए सेबी के पैनल के ऊपर, इसके ऊपर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उनको लगते हैं एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द शेयर होल्डर्स मनी डिफरेंट कंपनीज, तो वो भी उनके पास भी पैनल रहता है। तो ऐसे अलग अलग ये मिलते हैं। तो 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है एडवोकेसी में या चार्टर अकाउंटेंट में
या CS में कंपनी सेक्रेटरी का, ऐसे लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम 4-5 बार में क्लियर होते हैं, जनरली चार्टर अकाउंटेंट लोग क्लियर हो जाते हैं। लेकिन लॉयर को थोड़ा टफ जाता है क्योंकि थोड़ा से CA के एंगल से ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें है, तो वो उतना थोड़ा है लेकिन है। और बाकी जो कॉरपोरेट्स रहते हैं, दोज हुए हाउ दी बैंकर वगैरह है, दोज हुए हाउ दी एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट, तो उनके लिए 15 साल का अगर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो आफ्टर कंप्लीटिंग 50 years ऑफ एक्सपीरियंस दे कैन गिव दैट एग्जामिनेशन। बट टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन इज़ वेरी टफ, and to do that job as a IP RRP it is a toughest also, बराबर। कभी कभी तो हमको एक आधा असाइनमेंट लेने के बाद ऐसा लगता है यार क्यों झंझट में पढ़े, वो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि 2000 वर्कर का एक भी कंपनी अगर मैं लिक्विडेशन में जाने से बचा लूँ और उसको रिवाइव कर दूँ ना, तो मेरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने का जो एक सपना है वो पूरा हो जाएगा मेरा। बस इतना ही मेरा ये है, बाकी तो काम चलते रहता है। पैसे कमाने के लिए तो हम IP नहीं बने, पैसा तो हमको भगवान श्री कृष्ण के दया से सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में जो भी मिलता है ठीक ठाक मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नॉलेज जितना भी लेंगे कम है हमारे भारत में, और कॉर्पोरेट्स स्पेशली कॉर्पोरेट्स में एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉ में बहुत अच्छे नॉलेज रहना है। और मनोज कुमार चौधरी के साथ हम मिलके अभी 41 कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर भी एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। अलग अलग श्रुति, हमारे श्रुति कीर्ति जो मेरी एसोसिएट, उसके साथ हम पॉश एक्ट के ऊपर या पॉस्को के ऊपर भी अलग अलग सीरीज़ बनाने वाले हैं। और जो एक छोटे मोटे जो लॉज है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, इसके ऊपर भी हम कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का हमारा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को जुड़ते रहिए। अरे क्या बताऊँ आपको, 500 रुपये लेते हैं हम खाली लाइफ मेंबर का। उसका फ्री भी ग्रुप है, फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइफ मेंबर 500 रुपये में बनते हैं 20 साल के लिए। तो बहुत कुछ पेड प्रोग्राम रहते हैं, वो काफ़ी प्रोग्राम फ्री रहते हैं, काफ़ी पेड प्रोग्राम में आपको 50% तक डिस्काउंट भी मिलता है। तो बहुत अच्छे फैसिलिटी रहते हैं। नानी पालकीवाला हमारे गुरु हैं, उनके नाम पे हमने नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब शुरू किया हुआ है इन 2022, और आज बहुत अच्छा पूरे भारत भर में हमारे 10,000 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। और हमारा काम है लीगल एक्यूमेन जो है वो एक्यूमेन थोड़ा स्प्रेड करना और लोगों में लीगल अवेयरनेस करना, फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेना, ये सब कुछ हम करते हैं। और हमारे एसोसिएट्स है, AOR है, सब हमारे साथ हैं, आप लोग साथ हैं, तो आज काम चलता रहता है। बस इतना ही। दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने इतना टाइम दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।